Assalamualaikum. Dear students, my name is Muhammad Burhan, and I'm going to teach you the physics for 10th class, and we are starting from chapter number 10. So the name of this chapter is chapter number 10. It is, let me check is everything clear? Okay, so the name of this chapter is simple harmonic motion. Simple harmonic motion and wave. So our main concern is in this chapter will be simple harmonic motion, to understand the simple harmonic motion and the waves. So our first topic is simple harmonic motion. So before starting the topic, I'm going to tell you that after this topic the students will be able to understand the basic concepts of condition, necessary for an object to oscillate with simple harmonic motion, and we can write it also like simple designated as S, harmonic is H, and motion stand for M stands for motion. And the other thing that we will study or you are able to explain is explanation of simple harmonic motion with examples, that maybe we can have mass spring system, and it is a ball in bowl. And third example we can write here is a simple pendulum. So these things have to take in mind that during this lecture we will cover these basic concepts of a simple harmonic motion. Okay, so as we have Urdu medium students as well, so I'm going to elaborate our lecture in Urdu as well as in English. So सबसे पहले हम we will start with the term vibration. So जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले कोई चीज़ जो आती है वो यही कि मोबाइल वाइब्रेशन. सो एक्चुअली वाइब्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, लेकिन जैसा कि साइंस में और फिज़िक्स में हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए अप्रोप्रिएट डेफिनेशन की ज़रूरत होती है. तो वाइब्रेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, तो स्टार्ट में अ मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी, इसकी डेफिनेशन है जी, अ बॉडी इज सेड टू बी vibrating
if the condition, अगर it moves back and forth, बैक एंड फोर्थ का मतलब यहाँ पर आगे और पीछे की तरफ अपनी पोजीशन से, और हम कह सकते हैं, और इस मोशन को बहुत फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो about a point, about a point, किसी पॉइंट के अलोंग जो मोशन है उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन हम सिंपली कह सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मेन पोजीशन है, कोई बॉडी यहाँ से इस तरफ और इस तरफ दाएं और बाएं की तरफ मूव करती है टुवर्ड अ मेन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन, सिंपल क्या कह देते हैं, वाइब्रेशन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, मोशन की एक टाइप है जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन ये आपको आ सकती है एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। सो वी आल्सो टर्म्ड एज ऑसिलेशन, इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, इस वाइब्रेशन को सिंपली वी कैन आल्सो से ऑसिलेशन। सो किसी चीज़ का ऑसिलेट करना क्या है कि मेन पोजीशन के गिर्द कोई बॉडी अगर मूव करती है तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। सो अ सिंपल काइंड, अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सो अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन, अ स्पेशल काइंड ऑफ vibratory, there is a condition on vibratory or oscillatory motion is called, उसको हम क्या कहेंगे, simple harmonic motion। okay, so a special kind, this thing you need to take in mind, a special kind of vibratory or oscillatory motion is called simple harmonic motion। We are going to find that what is that special condition, what is that special kind, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए, तब ही हम किसी बॉडी को कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ठीक है, सो विच इज़ आवर मेन फोकस इन दिस चैप्टर, एंड वी विल आल्सो discuss important characteristics of simple harmonic motion. So we will demonstrate different properties with the help of a ripple tank in further lectures. Okay, so let's take our attention toward our main topic, which is a simple harmonic motion. Okay, so the motion of, there are some examples of simple harmonic motion: the motion of mass attached to a spring, the motion of mass attached to a
spring on a horizontal frictionless surface. So I'm going to draw. So let us consider this is a frictionless surface. This surface is considered as frictionless. So this is the spring, and along with that spring we have attached a mass m. एक मास m अटैच हुआ है इस स्प्रिंग के साथ और इस मास की मोशन इस स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग की वजह से टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो क्या है, एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके अलावा आपके पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर करते हैं इन अ शेप ऑफ अ बाउल, एंड एक स्मॉल बेरिंग बॉल अगर हम इस पे प्लेस करें तो वो डेफिनेटली यहाँ से टूवर्ड दिस इज़ द मेन पोजीशन ऑफ दिस बॉल एंड दिस इज़ द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दिस बॉल। Extreme positions, and this motion is also called a simple harmonic motion. Till अभी तक हमने वो कंडीशंस फाइंड आउट नहीं की हैं कि जिनके फिलफुल होने पर हम किसी बॉडी की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो जो चीज़ हमें माइंड में रखनी है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम नेसेसरी कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, और कोई भी मोशन जनरली तौर पर जो अपनी मीन पोजीशन के तरफ टू एंड फ्रो होगी वो वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी कहलाएगी, लेकिन हर वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। सो हम कंसीडर करते हैं यही फर्स्ट एग्जांपल। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह एक बॉब को हम अगर अटैच कर दें एक फ्रिक्शनलेस और मासलेस स्ट्रिंग के साथ, नेगलेक्ट करते हुए एयर फ्रिक्शन, तो इसकी मोशन हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम कहलाएगा, और इसकी मोशन भी क्या है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो लेट फोकस टूवर्ड द ओवर मेन टॉपिक। ये तो इंट्रोडक्शन था सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ कि कौन कौन सी चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती हैं। सो ओवर main topic is I'm going to write here the question over here, explain simple harmonic motion, और साथ क्या आ जाएगा, with mass spring system। सो हमारे पास जो सिस्टम है वो मास स्प्रिंग सिस्टम है। इस सिस्टम से हमें हार्मोनिक मोशन को। सो लेट्स स्टार्ट ओवर। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टार्टिंग में पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन, अगर इसमें से आता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। सो एज वी नो दैट one of the simplest type of motion is that horizontal mass spring system। तो हम consider करते हैं, let us consider how you will explain that। I'm going to write that from the start। Okay, let us consider a spring is stretched, or we can say spring is compressed through a small
a small displacement so we all know about the term displacement, straight line distance. so हमने डिस्प्लेस किया है एक स्प्रिंग को, वो अपनी मेन पोजीशन से कंप्रेस भी किया जा सकता है और उसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं. सो बोथ आर द कंडीशन. फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कंप्रेस कर दिया या हमने उसको स्ट्रेच कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, एक्स है. क्या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, एक्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो इसको हम देख लेते हैं बाय यूजिंग अ फिगर. विल राइट एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया. तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक सिंपल mass spring system. A spring and a mass m is on a frictionless surface. यहाँ पर हम आइडियल कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं, और ये मास जो है इसको हम आइदर स्ट्रेच भी कर सकते हैं. स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, एक्स है. और हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. ये जो ऊपर वर्डिंग है उसका मतलब ये है कि इस मैस एम को हम आइदर क्या कर सकते हैं, अगर ये मेन पोजीशन है इसको ओ कंसीडर कर लें तो कंप्रेस्ड फॉर्म में ये इधर को चला जाएगा, और स्ट्रेच फॉर्म में ये फॉरवर्ड मूव कर जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन उसको हमने यहाँ पर क्या, सो x इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो बाय कंसीडरिंग दिस एग्जांपल, अब होगा क्या यहाँ पर कि जब हम इस मास m को इसकी मेन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे, इस मास को मेन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी. जो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, रीस्टोरिंग फोर्स. और हुक्स के लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, that force will be F is equal to kx. अब हुक के कानून के मुताबिक जो फोर्स है जो कि प्रोड्यूस होगी कब, जब हम इस मास को अपनी मेन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाएंगे. ओके, अ फोर्स F इज़ प्रोड्यूस, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब कितनी अमाउंट की फोर्स होगी, kx. यहाँ पर एक जनरली तौर पर नेगेटिव साइन लगाया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. ये नेगेटिव साइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये नेगेटिव साइन एक्सप्लेन करता है कि मोशन जो है, ये रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज ऑपोजिट होगी टूवर्ड्स अ अप्लाइड फोर्स. हमने फोर्स अप्लाई की ताकि ये मास m अपनी मेन पोजीशन से किधर चला जाए, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, विच इज़ x, and the restoring force will tend to take that mass toward mean position. अपनी mean position की तरफ क्या लेके आएगी, इसे वापस ले आएगी. so इस equation के अंदर let's say this equation is 1, we have x is displacement from mean position, and where mean position, we have designated the mean position as a point O. And what is k? So this is k is the constant of proportionality. K is constant of proportionality.
सो दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम जनरली तौर पर कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये k जो है, वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी, वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो k है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि किस मटेरियल का स्प्रिंग इस्तेमाल किया गया है। आया कि स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है या उसकी स्टिफनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो सॉफ्ट स्प्रिंग है। सो अगर हम वैल्यू निकालना चाहें k की, द वैल्यू ऑफ k can be deducted from this equation number 1, from equation number 1 which we have is f is equal to minus kx। तो यहाँ से अगर k की वैल्यू फाइंड करें तो k आ जाएगा k is equal to minus f over x। सो द वैल्यू ऑफ k is depend upon, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है जी? यहाँ पर एक तो फोर्स पे, दूसरा डायरेक्टली रिलेटेड है ये वैल्यू ऑफ के फोर्स के साथ, और इन्वर्सली रिलेटेड है x के साथ। x इज़ द, तो वैल्यू ऑफ के वी कैन फाउंड फ्रॉम, वी हैव फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ के हमें क्या कुछ बताती है। सो यू कैन राइट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ k check the value of k is measured of the stiffness of spring और इसको फर्दर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मीन if a spring has a large value of k, value of k, its mean it is a stiff spring, and if the value of k is small then it will be vice versa, mean के स्प्रिंग जो होगा वो सॉफ्ट होगा फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ k। सो द मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म को हम फर्दर लेकर चलेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से फोर्स की आई, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई यूजिंग हुक्स लॉ, एंड आपने देखा होगा इस फिगर में कि हमने इस मास m को मेन पोजीशन से हटाकर एक्सट्रीम पर लेके गए, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाती है तो वो अगर डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, वहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन
सेकंड लॉ, हाँ जी, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक यहाँ पर जो फोर्स है F वो किसके बराबर है जी, ma के बराबर होती है। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। So equation number 1 was F is equal to minus kx, and the second equation we have over here is F is equal to ma। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, यहाँ पर लिखते हैं जी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करने से हमारे पास क्या आता है जी, f इज इक्वल टू एम ए एंड f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो व्हेन वी विल कंपेयर बोथ ऑफ देम, दैट विल बिकम माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। ओके, minus kx is equal to ma. So we can put m from here to this side of equation, and it will become minus k over m x is equal to a. So further यहाँ पर k और m mass of the object which is attached with the spring, this is mass and this mass is fixed। so ये दोनों कांस्टेंट k और m की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं a is proportional to minus x। so this is the result। यहाँ से हमारे पास नेसेसरी कंडीशन आ गई कि what should be the condition for a body to have simple harmonic motion। कंडीशन ये है कि for simple harmonic motion it is necessary that, ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन आपके पास प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के। पहली चीज़, एक्सेलरेशन must be proportional to displacement। we can write it here, acceleration should be proportional to displacement। and what is this negative sign? इस negative sign का क्या मतलब है? so negative sign explains that the direction of acceleration is towards the mean position। so negative sign means that as we are taking away, यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब इस मास को अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाया जाता है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होगा। और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे, तो ये टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मूव करेगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन की तरफ मूव करते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ आते हुए इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन एक्सप्लेन करती है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन will be decreased toward the extreme position। so here this is the mathematical explanation of or condition, necessary condition for the simple harmonic motion। so further we will explain, इसके बाद हम we will explain further क्या करेंगे, इस डायग्राम से मोशन को एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हमारे पास क्या आई, a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे
कि ये बॉडी किस किस तरह मूव करते हुए अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पर, और दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पर मूव करते हुए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी. सो लेट्स जस्ट रिव्यू our lecture. What we have done so far is we have defined the vibration. Simple definition: a body is said to be vibrating if it is moving back and forth or to and from motion, or we can also call it oscillatory motion. So a special kind, इसी motion की एक special kind है जिसे हम क्या कहते हैं, simple harmonic motion. Examples जो हैं simple harmonic motion की, उनमें हमारे पास mass attached to a spring, बाउल की एग्जांपल, बाउल के अंदर अगर एक बॉल बेयरिंग को प्लेस करें उसकी मोशन क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक. इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक और एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम. सो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास हमने कंसीडर किया ए बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये मूव कर सकती है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर. यहाँ से इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, एक फोर्स हमारे पास आई F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. यहाँ से हमने स्प्रिंग कांस्टेंट K फाइंड किया, उसकी वैल्यू माइनस एफ ओवर एक्स. तो यहाँ से डिफाइन कर लिया हमने कि K बेसिकली क्या बताएगा, K इज एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्प्रिंग, आइदर द स्प्रिंग इज स्टिफ और सॉफ्ट. एंड फर्दर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, और जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को हमारे पास कंडीशन आ जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, विच इज़ ए इज इक्वल टू माइनस एक्स. होप स्टूडेंट्स बाय लिसनिंग दिस लेक्चर आपको बेसिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा. और फर्दर अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो LMS की साइट के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, अपनी सजेशन ऐड कर सकते हैं. खुश रहें, अपना ख्याल रखें, इस पेंडेमिक के अंदर घर रहते हुए स्टडीज़ को भी अपने कंटिन्यूज रखें. सो थैंक यू सो मच. फर्दर हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी. थैंक यू सो मच.